Okay, once again very good morning to all of you. Now जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, right, as we have seen in our last class, we have started our chapter linear algebra. We have seen few properties and definition, and with each one of property and definition we have seen each different types of examples, right? So let us proceed from over here. Let us see one more property, and based on that property we'll see that example. Okay, so this property is when k is multiplied with any matrix. Now tell me, if any matrix, here A is your matrix, right? Here A is your matrix. Suppose this is 3 into A is your 3 by 3 matrix. Suppose it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So any number when you are multiplying with matrix and with determinant, there is one different. No. See, जब डिटर्मिनेंट में आप मल्टीप्लाई करते हो स्टूडेंट्स, यस, सो इन डिटर्मिनेंट आप उसके कोई भी रो या कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सी, because if you can take common from any row or column, right? You can take common from any row or column in determinant. In the same way, if you are multiplying it, you have to multiply it with any row or column if it is determinant. But if it is matrix, then you have to multiply this 3 with each and every element. So it is 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, this is 18, 21, 24, and this is 27. Are you getting my point? So if you are multiplying 3 with matrix, you have to multiply this with each and every element. But if it is determinant, then you have to multiply with any row or column. Now suppose I have to take its determinant. If I want to find determinant of this 3a, so this is your determinant of 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Now yesterday only we have seen this property that we can take 3 common from any row or column. Okay, so suppose here I am taking 3 common from each and every row. So from first row it is 3, and if I am taking common from its first row, it will become 1 2 3. Now again 3 common from second row, so it will become 4 5 6. Again let us take 3 common from third row, it will become 7 8 9. So this is your 3 into 3 into 3, that is 3 cube into determinant or a or not, because this is determinant of a only. Okay, so you got this. So what is moral of the story? If your matrix is a n by n, if you are multiplying any constant with that matrix and then you are finding its determinant, then it is equivalent to taking k common from all the rows or column, and here number of rows and column are n. So taking k common from n rows, so it will be k to the power n determinant of a, where your a is n by n matrix. Are you getting my point? Please give me some response. So this is your property, and based on this property, now we are going to see one example. Okay, so this is your one property. Is it clear? This property is clear. Anyone is having any doubt? किसी को कोई भी डाउट है? कोई ना कोई पण डाउट છે આ property માં? But if you are having any doubt, you can ask me. Okay? Yes. Chalo, good. Okay, great. So let us see question number 5 now. Based on that, if an is equal to, in determinant we are having n square n cube. Here it is 1 5 2m plus 1 3m square and 2m plus 1 3m. Then they are asking us to find sigma n equal to 1 to m an. Okay, and this was asked in only 1 mark. This was asked in only 1 mark, students. So if you need to answer this type of question in GATE, you need to be fast, you need to be strong.
okay, for this type of questions. Right. Sure. So let us see this. So sigma an, see its meaning. Sigma means what? You have to sum all of this determinants or not, right? So sigma n equal to 1 to m an. अगर आप ये अप्लाई कर रहे हैं तो n आपका वेरिएबल कहाँ पे है? यहाँ पे है, राइट? तो ये आपका हो जाएगा एग्जैक्टली a1 डिटर्मिनेंट प्लस a2 प्लस a3 up to am, isn't it? Please give me some response. अब a1 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स? 1 स्क्वायर 1 क्यूब 1 2m plus 1 3m square 5 2m plus 1 3m. उसी तरीके से आप a2 लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 2 क्यूब 1 2m plus 1 3m square 5 2m plus 1 3m, and your final term will be in terms of m. So it is your m square m cube. Now raised to terms are same, that is 1 2m plus 1 3m square and 5 2m plus 1 3m. Is it clear now? Please give me some response. Okay, sorry. Okay. Now, अब यहाँ पे आपके डिटर्मिनेंट की भी एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कि डिटर्मिनेंट में अगर आपकी कोई भी दो रो या दो कॉलम कांस्टेंट होती है, राइट, अगर आप उन सबका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, यू कैन सी ओवर हियर आपकी R2 और R3 चेंज नहीं हो रही है, सॉरी C2 एंड C3 आपके चेंज नहीं हो रहे हैं, वो कांस्टेंट है, बस आपका C1 ही चेंज हो रहा है, तो आप डायरेक्टली वो सिर्फ C1 को ही ऐड कर सकते हैं एंड यू विल गेट योर आंसर सेम. तो सभी डिटरमिनेंट को अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं, आप बस पहली कॉलम या पहली रो को ऐड कर दे जो चेंज हो रही है, राइट. सो इट इज योर 1 स्क्वायर एग्जैक्टली प्लस 2 स्क्वायर अप टू m स्क्वायर एंड 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू m क्यूब. ये पता है ना, राइट? ये आपका क्लास 12th का ही कंसेप्ट है, इसलिए मैं वापस नहीं पढ़ाया अलग से, मेजोरिटी ऑफ द कंसेप्ट वही है, बट कुछ कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ जो भूल जाते हैं. ये आई थिंक याद होगा सबको. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. ये याद है, राइट? अगर आपको सारे डिटर्मिनेंट को ऐड करना है और उसमें सिर्फ आपके फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम चेंज हो रही है, कोई भी एक रो या एक कॉलम चेंज हो रही है, बाकी सारे सेम है, तो आप उन्हें डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो अब ये पूरा एक्सपेंशन मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको पता चले. सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्वेश्चन देखें, अब जब आप गेट में एक क्वेश्चन देखें तो आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए, राइट, कि यहाँ पे आपके सिग्मा का वेरिएबल, योर वेरिएबल ऑफ सिग्मा इज n, right? So that variable of sigma n is in only first column, rest two columns are constant. Okay, so here you can apply sigma directly to this first column. Okay, so in gate, right, ये पहली बार समझा रहा था इसलिए ये समझा रहा था. So whenever you are writing this in gate, you should begin from this step directly. Okay, directly आपको sigma देना है first column को. Okay, so this will be your sigma n, where n is from 1 to m. This is your sigma n square, right? And this is your sigma n cube. Are you getting my point? Everywhere n is from 1 to m. So sigma मैंने n square और n cube को दे दिया. Okay. Now here I'll be having 1 2m plus 1 3m square 5 2m plus 1 3m. Okay. चलो तो समझ जाइए अगर. So what is the formula of sigma n, students? n by 2 n plus 1 or not? Okay, so let us revise this formula as well. फटाफट ये सारे के फॉर्मूला को रिवाइज कर देते हैं. आपने ये फॉर्मूला पढ़ी थी सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, तो जो लास्ट टर्म होती है उसका यूज होता है n by 2 n plus 1. याद आया? सिग्मा r स्क्वायर r इक्वल टू 1 to n, ये आपका होता है n plus 1 2n plus 1 by 6. ओके, और सिग्मा r क्यूब r इक्वल टू 1 to n, ये आपका हो जाता है डायरेक्टली आपके फर्स्ट टर्म का स्क्वायर n plus 1 by 2 whole square या n square n plus 1 whole square by 4. Okay, see, I want response from each one of you, right? Only 10 students are giving me response. Okay, so sigma r cube आपका क्या होगा? n square n plus 1 whole square by 4. So let us put all these values.
अब ये सारी फॉर्मूला आपकी सिग्मा आर के लिए है, जहां आर आपका वेरिएबल होता है 1 से n. Okay, so n is your last term. Here m is your last term, right? In all these cases m is your last term. Okay, तो ये आपका हो जाएगा for first case m by 2 m plus 1. For second case it is m by 6 m plus 1 2m plus 1. And for last case it is m square m plus 1 whole square by 4. I think here there is one screen annotation. Okay, let me remove that. Okay, so m by 6. Okay, now let us again from here it is m square by 4 m plus 1 whole square. Now here what I am having, now see this is gate. जब भी आप लिखो तो थोड़ी जगह छोड़ के लिखो. अभी मैंने पूरा नजदीक नजदीक लिख दिया, तो मैं थोड़ी जगह छोड़ के लिख रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मैं इसी में फिर आसपास सिंप्लीफाई कर पाऊंगा. ओके, हियर ओनली. सो m by 2 m plus 1 ये आपका आ जाएगा m by 6 m plus 1 2m plus 1. ये आपका है m square by 4 m plus 1 whole square, राइट. चलो सेकंड कॉलम. सेकंड कॉलम में आपके पास है 1 2m plus 1 3m square. Okay, चलो here 5 2m plus 1 3m. ओके, चलो बोलो स्टूडेंट्स, कहाँ से आगे बढ़े? व्हाट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप? क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं? देखो आराम से. क्या m यहाँ यहाँ सभी जगह है? सो लेट अस टेक यस m कॉमन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम. राइट, अगर फर्स्ट कॉलम से मैं m कॉमन ले रहा हूँ तो आपका m इधर बाहर आ जाएगा. ओके, सो पहले आपने ले लिया कॉमन m. चलो उसके बाद m प्लस 1 भी है सभी जगह. m प्लस 1 m प्लस 1 m प्लस 1. राइट, यहाँ पे भी आपका एक m तो बचेगा. सो m प्लस 1. चलो और ये 2m प्लस 1 है इधर. ओके यस, 2m प्लस 1 ये आपका बच जाएगा 1. चलो यहाँ पे 3m, तो m निकल जाएगा. m यहाँ पे m निकल गया, यहाँ पे m निकल गया. ओके, चलो इज इट क्लियर? तो इतना सब हमने कॉमन निकाल दिया है. अब जल्दबाजी नहीं करनी है. अब एक बार अच्छे से लिख देना है कि क्या बचा है, राइट, जो मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था. उसके बाद आगे बढ़ेंगे. सो हियर वी हैव टेकन m स्क्वायर m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1. इतना कॉमन लेने के बाद अब अंदर हमारे पास बचा है इन फर्स्ट टर्म इट इज हाफ और नॉट. फिर यहाँ पे 1 यहाँ पे 5. आप देख सकते हो मैं ज्यादा स्पेस छोड़ के लिख रहा हूँ. क्यों ज्यादा स्पेस छोड़ के लिख रहा हूँ? ताकि सिंप्लीफाई कर पाए. यहाँ पे बचा है 1 by 6, यहाँ पे बचा है 1, यहाँ पे बचा है 1. फिर इधर आपका हो जाएगा m प्लस 1 by 4, isn't it? ये आपका हो जाएगा 3m और ये आपका हो जाएगा 3 ओनली, क्योंकि m तो कॉमन निकल दिया है. ठीक है, एक बार चेक कर लो. राइट, चलो अब सिंप्लीफाई करो. तो सबसे पहले क्या ये 1/2 1 by 6 एंड 1 by 4 को मैं कॉमन ले सकता हूँ? मतलब कॉमन तो नहीं ले सकता, पर ऐसा ले लेता हूँ ताकि वो पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, 6 से हो जाए या 4 से हो जाए. इन 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 तीनों में 1/2 तो है ना, राइट. सो लेट अस टेक 1/2 कॉमन नाउ. ओके, तो ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 1/3 और ये आपका हो जाएगा 2. राइट, मैंने 1/2 कॉमन निकाल दिया ताकि सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो. इन द सेम वे यहाँ पे 1/3 है, तो इधर मैं 1/3 कॉमन निकाल रहा हूँ या 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो जब मैं सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसको बैलेंस करने के लिए बाहर 3 से डिवाइड कर रहा हूँ. तो ये 3/3 1, ये 3 और 3 हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ताकि मैं फ्रैक्शन को दूर कर रहा हूँ ताकि मेरे लिए काम आसान हो जाए. ओके, सेम अब यहाँ पे m प्लस 1/2 है, तो वो 2 को दूर करने के लिए या तो मैं 1/2 कॉमन निकाल रहा हूँ. तो जब आपको 2 कॉमन निकालोगे, यहाँ पे नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये आपका हो जाएगा 6m और ये आपका हो जाएगा 6. ये आप पूरे थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, ये क्लियर हुआ सेकंड रो और थर्ड रो वाला?
राइट। ये आपका 3 हमने कैंसिल कर दिया है यहाँ पे, तो ये बस आपका 1 बचा है। राइट। अब मैंने आपको बोला था जब आपके पास बहुत सारे 1 हो, 1 1 5 1 3 3, देन हियर m + 1 6m and 6, तो कोई भी एक 1 को पकड़ के हम मैक्सिमम 1 को 0 करते हैं, इजंट इट? तो आप कॉलम वाइज भी जा सकते हैं, इस 1 को पकड़ के इसको 0 कर सकते हैं, या इस 1 को पकड़ के इसको 0 कर सकते हैं, इस 1 को पकड़ के इसको 0 कर सकते हैं, वट एवर यू फील कंफर्टेबल। बोलो कौन सा करें? C1 - C2, C2 - C1, और R1 - R2। We are having 3 options. Yeah, R2 - R1, 4 options. Type in chat box quickly. कोई जो आप बोलोगे वो करेंगे। C2 - C1, ओके। तो जैनिश ने पहले आंसर दिया है C2 - C1, तो चलो C2 में से C1 को माइनस कर देते हैं। 1 - 1 0, 3 - 1 2, 6m - m, वो हो जाएगा आपका 5m - 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास 105 बचा है, तो इसकी मदद से एक्सपांड कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट रो। वी आर हैविंग 1 and 5, क्योंकि इससे ज्यादा फर्दर अब क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। m² m + 1 2m + 1 डिवाइड बाय 3 2 6 6 2 12। ठीक, चलो पहले 1 के साथ करते हैं। सो दिस इज योर 1, रो कॉलम को ढक दो। 6 2 12 माइनस 3 टाइम्स 5m - 1 प्लस 5, okay, minus plus 5. Now 1 into 5m minus 1, that is 5m minus 1, minus 2 into m plus 1 or not? Minus 2 into m plus 1. Are you getting my point? Please give me some response. Okay, तो इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। सो ये आपका हो जाएगा m² m plus 1 2m plus 1 by 12। चलो, सो ये आपका हो जाएगा 12 minus 5 3 is 15m माइनस माइनस प्लस 3। ओके, या पहले हम आप अंदर सिंप्लीफाई, वो तो एक ही होगा यहाँ पे, प्लस 5 यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 5m - 2m 3m -1 -2 -3 हो जाएगा। चलो अब ब्रैकेट का ही सिंप्लीफाई करते हैं क्विकली। सो 12 + 3 is 15 और नॉट, ये हो जाएगा आपका 15 - 15m प्लस 5 3 is 15m प्लस 15m माइनस 5 3 is 15 प्लस 15 माइनस 15 कैंसिल, प्लस 15 माइनस 15 कैंसिल, 0 0 into anything 0। पता चला everyone? Any doubt in this question? Okay, shall we move to next question now? Okay, please give me some response। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज की, क्या वो अलग से मुझे आपको लिखाने की जरूरत है, रो और कॉलम वाली? राइट, अगर अलग से लिखाना है तो बोलो, वो एक प्रॉपर्टी हम अलग से लिख लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नो हो जाएगा ना, आसान है राइट? चलो ग्रेट। सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है। इफ A is your matrix which is containing elements Aij 3 by 3, and Aij is defined as j² minus I² for all ij, then what is A inverse? Okay, तो ये क्वेश्चन हमें बहुत सारी प्रॉपर्टी देगा। हाँ, विच क्वेश्चन अविनाश, क्वेश्चन 5 और 6? क्वेश्चन 5 बाई ट्रायल एंड एरर। बट इसमें आप हिट एंड एरर मेथड कैसे करोगे? मतलब हिट एंड ट्रायल या ट्रायल एंड एरर मेथड या हिट एंड रन मेथड, जो भी नाम दो, क्योंकि नहीं, ट्रायल एंड एरर मेथड से तो नहीं हो जाएगा ना। एम की कोई वैल्यू मान के फिर आगे सिग्मा कैसे अप्लाई करोगे? हाँ, वो कर सकते हैं, एम की कोई वैल्यू मान के कर सकते हैं। हाँ, एम की कोई पर आगे वो सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा ही, पर यहाँ पे फिर आगे कर सकते हैं। पर्टिकुलर ये क्वेश्चन में कर सकते हैं क्योंकि आंसर तो फाइनली 0 ही आने वाला है। बट सपोज इसका आंसर फिर कोई एम के टर्म में आता, हाँ, तो फिर ऑप्शन में आप सारे ऑप्शन में रख के दे सकते हैं। ठीक है, सो हाँ, ऑप्शन में वैल्यू रख के। सो द थिंग इज, जब भी आपके पास ऑप्शन में पर अब गेट वाले ना होशियार हो गए हैं। अब गेट वाले क्या करेंगे, अगर ये नहीं, पर इसमें ऑप्शन होंगे, ठीक है, तो कर सकते हैं। जब तक आपके पास ऑप्शन में लास्ट ऑप्शन ऐसा नहीं है बी नन ऑफ दिस,
तब आप मोस्ट ऑफ द केसेस ट्रायल एंड एरर यूज करके कर सकते हैं। मतलब जो भी ट्रायल एंड एरर वाले केस हैं जिसमें आपको लगे कि सर हम इसमें हिट एंड रन मेथड, ट्रायल एंड रन मेथड और ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर सकते हैं या नहीं, तो जो भी ट्रायल एंड एरर वाले क्वेश्चन है उसमें बस एक चीज देख लें कि ऑप्शन डी नन ऑफ दिस है या नहीं। अगर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस है सो डोंट गो बाय ट्रायल एंड एरर, राइट, बिकॉज उन्हें पता है कि स्टूडेंट्स क्या मेथड यूज करने वाले हैं और कहाँ गलती होगी। तो जानबूझ के वो देख लेते हैं कि ये होगा और जो भी छोटी वैल्यूज के लिए पॉसिबल आंसर होगा वो लिख देते हैं और एक नन ऑफ दिस लिख देते हैं। ठीक है, सो वो एक बार देख लेना। चलो, सो नाउ अब कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन। चलो, ए इनवर्स की डेफिनेशन मुझे कौन बताएगा स्टूडेंट्स? रेज योर हैंड और टाइप इन चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में टाइप करना डिफिकल्ट होगा। ओके, हाँ यस अविनाश, इट इज 0। ओके, तो बोलो ए इनवर्स। स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। ए इनवर्स की फार्मूला पता ही होगा, बहुत बार किया है। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए और नॉट, राइट, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। चलो, अब ए आपका ए आई जे है तो वहां से हम डिटर्मिनेंट ए कैसे फाइंड कर सकते हैं? ओके, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट बाद में देखेंगे। चलो, अब डिटर्मिनेंट मुझे इसका फाइंड करना है। ये कौन सा मैट्रिक्स होगा आपका? इफ ए आई जे इक्वल टू जे स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, समझ रहे हैं यहाँ पे, ए आई जे इज जे स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। अगर मैं रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूँ, मैं ए जे आई कर रहा हूँ, तो वो आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर होगा, इजंट इट? ए आई जे का मतलब क्या हुआ? ये जे लास्ट वाला टर्म पहले माइनस फर्स्ट टर्म, ये लास्ट वाला टर्म पहले आई स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म, आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। सो ए आई जे इज जे स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ए जे आई इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। अब उसको ऊपर वाले टर्म से कंपेयर करो तो नेगेटिव ऑफ ए आई जे है। Here AJI is negative of AIJ, isn't it? Please give me some response. Now, अब आप मैट्रिक्स में अगर आपको याद हो तो दो चीज आप पढ़े थे। लेट मी रिवाइज यू दैट। अगर आपके पास A है, राइट, तो A के लिए A ट्रांसपोज के रिलेटेड आप पढ़े थे। A ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, राइट? आप जस्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। AIJ है तो उसको AJI में कन्वर्ट कर दो। ओके, वो एलिमेंट आपका जो रो एंड कॉलम में था उसको AJI में कर दो। ओके, नाउ चलो, अब ये आपका A है। ओके, A ट्रांसपोज AIJ AJI। इफ your AJI equal to AIJ implies your A transpose is equal to A, this is called your symmetric matrix. And if AJI equal to minus AIJ implies A transpose is equal to minus A, it is called your skew symmetric matrix. याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? Students, please give me some response, right? So, symmetric matrix and skew symmetric matrix. चलो, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज याद कर देते हैं। ठीक है, सो अगर यहाँ पे एक चीज तो आपका एक प्रॉपर्टी पहले ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज सेम होता है। ए और ए ट्रांसपोज में तीन चीजें सेम होती है स्टूडेंट्स। एक होता है डिटर्मिनेंट, एक होता है रैंक, एक होती है आइगन वैल्यू। ठीक है, अभी एक वीक के कोर्स में हम इतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बट ये ध्यान रखो, ए और ए ट्रांसपोज में तीन चीजें सेम होती हैं। एक होता है डिटर्मिनेंट, एक होता है उनका रैंक, राइट, ये रैंक का आपका सिंबल है, एंड दूसरी उनकी सेम होती है आइगन वैल्यूज, ओके, जिनका सिंबल है लैम्बडा। तो ये सारी चीजें सेम होती है ए और ए ट्रांसपोज के लिए, जहां पे मैंने अभी डिटर्मिनेंट लिखा है। चलो, अब अगर इस और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत यह है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज आपको 0 मिलेंगे। वही अभी प्रवीण ने बोला, डायगोनल एलिमेंट्स विल बी ऑलवेज 0। क्यों? क्योंकि डायगोनल, सी, सारे एलिमेंट्स के लिए आपका ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे है। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आपका आई और जे सेम होगा, राइट? सो ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई implies माइनस इधर आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ए आई आई इक्वल टू 0, सो ए आई आई इक्वल टू 0। सो सारे डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 होंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका हो गया एक सारे डायगोनल एलिमेंट 0, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें जो देखना है उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है,
चलो अब अगर मैं यहाँ पे फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, अगर मैं दोनों जगह डिटर्मिनेंट अप्लाई कर रहा हूं, सो हियर determinant of A transpose will be equal to determinant of minus A or not, implies determinant of A transpose तो determinant A होता है, वो आपको पता ही है. ओके चलो अब ये माइनस है, दिस माइनस इज मल्टीप्लाइड विद मैट्रिक्स, और जब आप उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हो तो उसकी n पावर होके बाहर आएगा. ठीक, if any constant is multiplied with matrix, if you are taking constant outside of that matrix, then you have to take its nth power common if it is n by n matrix. Okay, तो अगर वो n by n मैट्रिक्स है तो क्या ये आपका माइनस वन टू द पावर n नहीं होगा? माइनस वन टू द पावर n डिटर्मिनेंट. इज इट क्लियर नाउ? अब माइनस वन टू द पावर n के लिए आपके पास पता ही है कि इसके दो आंसर पॉसिबल है, आइदर माइनस वन और प्लस वन. माइनस वन व्हेन n इज ऑड एंड प्लस वन व्हेन n इज इवन. राइट, सो अगर मैं यहाँ पे ऑड ऑर्डर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहा हूँ जिसका ऑर्डर ऑड है, ओके दैट इज n इज ऑड, तो क्या ये माइनस वन टू द पावर n माइनस वन नहीं हो जाएगा? So determinant A equal to minus determinant A. So same thing over here. Implies 2 times determinant A equal to 0. Implies determinant A equal to 0. Okay. So here, sorry. So for here, for odd order skew symmetric matrix, its determinant is always 0, isn't it? So this is your one more property, that for any odd order skew symmetric matrix, its order is always 0. Oh, sorry, its determinant is always 0. Is it clear now? Please give me some response, right? ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हुई? एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूँ, ये पूरा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वाला. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग. राइट, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और क्वेश्चन के बेस पे से मैं आपको कंसेप्ट सारे रिवाइज करा रहा हूँ कि ऐसे सारे कंसेप्ट हैं. ठीक है, ये आपका पहला कंसेप्ट हो गया यहाँ पे. दिस इज योर अनदर कंसेप्ट. सारे कंसेप्ट में ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ. राइट, ब्लैक मार्कर से आपके सारे कैलकुलेशन है, रेड मार्कर से क्वेश्चन है. तो इस तरीके से भी आप सारी चीजें हाईलाइट कर सकते हैं. ओके, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग देखे कल टेलीग्राम पे भेजे थे और ये. ओके, सो नाउ टेल मी एनी स्टूडेंट्स, शैल आई रिपीट दिस? क्या रिपीट करो एक बार सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वाला? और शैल वी मूव फॉरवर्ड? ओके, चलो फॉरवर्ड. ओके, चैट बॉक्स में क्लियरली लिखें. ओके, कोई स्टूडेंट लॉगिन है ऑनर 99 नाम से, तो आप अपने आप को रीनेम कर दें, और वो आप मतलब रिपीट करना है तो लिखे रिपीट, फॉरवर्ड तो लिखे फॉरवर्ड. ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं. सो यहाँ पे अब ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? इट इज थर्ड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉट. राइट, हियर AJ इक्वल टू माइनस AIJ. लेट अस कम बैक टू दिस क्वेश्चन. So here it is skew symmetric matrix, implies A transpose equal to minus I, and its order is 3, which is odd. So it is your odd order skew symmetric matrix. So its determinant is what? 0. If determinant is 0, implies A inverse does not exist, isn't it? Okay, चलो next question. Suppose यहाँ पे अब आपको ऐसा दिया होता इसी क्वेश्चन में, if they have given you like this, if A is 5 by 5 matrix such that Aij equal to j to the power 4 minus I to the power 4, और अब आपको पूछना है डिटर्मिनेंट A. चलो क्या होगा आंसर? 0, isn't it?
यस, ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉट। ओके, सो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन 7, अब समझना ये वाले क्वेश्चन आपको और नई प्रॉपर्टी देंगे एडजॉइंट के बारे में। ओके, और ठीक है, पहले वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, पहले एडजॉइंट के ऊपर प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर एडजॉइंट फाइंड करने की भी हम मेथड को रिवाइज करेंगे, और फिर एक 3x3 का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए मैं आपको शॉर्टकट दूंगा कि हम कैसे 3x3 का तुरंत फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, if A 4x4 is any square matrix such that determinant A equal to 5, that is for A by 4 matrix, if its determinant is 5, then they are asking few things. First, what is determinant of adjoint A? What is determinant of adjoint A? What is determinant of adjoint of A? Okay, so I am giving you direct formula, right? इसका derivation बहुत ही आसान है, and since we are engineers, right, our main focus is on solving problem or application of maths, not in its derivation. ठीक है, derivation भी आसान है, अगर आपको derivation में कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो ये ऑलवेज याद रखें, राइट। फॉर, पहले मैं आपको सारी फॉर्मूला ब्लू मार्कर से दे रहा हूँ, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो फॉर ए एन बाई एन, राइट, its determinant of adjoint A is equal to determinant A to the power n minus 1. For A n by n, determinant of adjoint A will be equal to determinant A to the power n minus 1. Determinant of adjoint A, it will be determinant A to the power n minus 1 whole square. Determinant of adjoint of A will become determinant A to the power n minus 1 whole cube, and so on, right? In the same way आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप बस को ये देखना है आपको कि अगर एक बार एडजॉइंट है तो टू द पावर n minus 1, दो बार है तो n minus 1 स्क्वायर, तीन बार है तो n minus 1 whole cube. If adjoint is only one time, it is n minus 1. If it is two times, and it is n minus 1 square. And if it is three times, your answer will be n minus 1 whole cube. Now, what is hint for its derivation? It is derived from your normal formula, that is A inverse is equal to 1 upon determinant A into adjoint A only. Okay. So from here, what is your adjoint A? Determinant A into A inverse or not? Okay. Now, after that, you can apply over here inverse on both the sides, or sorry, determinant on both the sides, and then you can proceed. Okay. So determinant of adjoint A will be determinant A to the power n minus 1, and determinant of A inverse, there is one more property. So here determinant of adjoint A equal to determinant of determinant A into A inverse. Now understand this. This determinant is constant and this A inverse is matrix. तो जब भी आपका constant determinant के बाहर आता है उसकी n power बाहर आती है. So this will become your determinant A to the power n. This is your determinant of A inverse, right? And determinant of A inverse is 1 upon determinant A. Determinant of A inverse is 1 upon determinant A. Okay. तो वो आप इधर 1 upon determinant A रखोगे तो ये हो जाएगा determinant A to the power n minus 1. ये पता चला, राइट? फिर इसी तरीके से आप दूसरा भी डिराइव कर सकते हैं। दूसरा डिराइव करने के लिए आपको A की जगह adjoint A से रिप्लेस करना है। Okay, so this is your derivation. So replace A with adjoint A, right, for next properties or next values, I can say, right, and so on. Okay, so I think ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। Okay, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखनी है, नीचे उसका डेरिवेशन है। अभी इसकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो दिस इज योर डिफरेंस ऑफ गेट एंड नॉर्मल, राइट? हम इंजीनियरिंग लेवल पे ये सारी चीजें नहीं पढ़ते, पर गेट में आप इसीलिए ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑलरेडी आपको 5 दिया है, n यहाँ पे है 4। ओके, सो हियर वी आर हैविंग n इक्वल टू 4,
डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 5, तो ये आपका हो जाएगा 5 टू द पावर 3, 4 माइनस 1 3, ये हो जाएगा आपका 5 टू द पावर 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 5 टू द पावर 3 क्यूब, इजंट इट? तो बस अब कर सकते हो ना, इट इज योर 5 टू द पावर 3 125, 5 टू द पावर 9, फिर वो क्वेश्चन ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में कैसे दिया गया, 5 टू द पावर 9 को सिंप्लीफाई करके दिया है कि एज इट इज दिया है, लाइकवाइज यू कैन मूव, दिस इज योर 5 टू द पावर 27. ओके, इज दिस क्लियर? शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? एडजॉइंट वाली दो प्रॉपर्टी हमें देखनी है, ये पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, अब एडजॉइंट वाली हम दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे. इस बार हम रिवर्स जा रहे हैं, हम पहले प्रॉपर्टी देख रहे हैं फिर हम देख रहे हैं. ओके, सो if anyone wants repetition, don't be shy.